دانشوروں، عالم فاضل وکیلوں اور پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی اکابرین کی اس کہکشان میں ہم جیسے لوگوں کا بولنا ذرا مشکل ہوگا۔ بہرحال ہم انتہائی مشکور ہیں بار کونسل کے معزز دوستوں کے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے انتہائی اہم موڑ پر، جب کہ پاکستان دنیا میں بھی یکا و تنہا ہو رہا ہے اور ملک کے اندر بھی حالات انتہائی گمبھیر اور خطرناک ہیں، پھر ہمارے میزبانوں کا یہ حکم کہ 5 منٹ میں ابھی سمندر کو کوزے میں بند کرنا عالم فاضل لوگوں کا کام ہے، ہم جیسے اجٹ جاہل لوگ کیسے کر سکیں گے۔ بہرحال مہمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، میزبانوں کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سیدھی سادی بات ہے، بڑی تفصیل سے میرے بائیں بیٹے امیر حیدر نے، بعض دوسرے اکابرین نے، پھر آنے والے لوگ اس پہ بات کریں گے۔ میرا ایمان ہے، ڈونٹ مائنڈ، میں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میرا ایمان ہے یہ اجتماع، میں کسی کی ایمانداری پہ بھی شک نہیں کرتا، یہ اجتماع اگر چاہے، یہ اگر بڑا خطرناک اگر ہے، یہ اجتماع اگر چاہے it can topple any government in this country۔ میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ ہماری مالک بھائی نے ٹھیک کہا، آپ ہمیں چھوٹی پارٹیاں کہتے ہیں لیکن ہم بڑی بڑی یونٹس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں نے کسی سے، خدا گواہ ہے، میں نے کسی سے بات نہیں کی، میں ذمہ داری لیتا ہوں، محسن داوڑ کی بھی، اس جوان کی بھی، ڈاکٹر مالک کی بھی، یوسف مستی خان کی بھی، ساتھ بیٹھے ہوئے خاموش کی بھی، ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے جو بلوچ سندھی بھائی ہیں، کھرائی کی بھائی، میں سب کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وی آر ود یو۔ ایجنڈا واضح ہونا چاہیے۔ ایجنڈا یہ ہے، پاکستان از اے فیڈریشن، اس میں کوئی فاتح اور کوئی مفتو نہیں ہے، ہم والنٹیریلی اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارا آئین ہے۔ اس اجتماع نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور ہمیں بتانا ہوگا کیا یہ کاغذ ایک فارمیلٹی ہے، اٹ از جسٹ اے فارمیلٹی، یا یہ کاغذ، یہ کتاب ہم جیسے لوگوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہے۔ ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے۔ رانا مہربان دوست ہے، میں پنجابی نہیں جانتا، وہ مجھ سے پشتو میں بات نہیں کر سکتا۔ میرا بلوچ بھائی اکبر مستی خان جس زبان میں بات کرتا ہے میں اس کو نہیں سمجھتا، میں جس زبان میں بات کرتا ہوں یہ میری نہیں سمجھتا۔ بلاول بھائی، شہباز بھائی، ان کی مادری زبانوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ آپ کے مقابلے میں، یعنی یہ آئین مجھے سندھ کے بدین کے ایک آدمی سے جوڑتا ہے، یہ آئین مجھے ترپارکر کے ایک آدمی سے جوڑتا ہے، یہ آئین مجھے کسی بلوچ سے جوڑتا ہے، جبکہ میرا رشتہ آپ سے زیادہ کہیں اور بھی ہے، جہاں میری اپنی زبان ہے، جہاں اپنے لوگ ہیں۔ اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے پاکستان نہیں چلے گا، اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے پاکستان نہیں چلے گا۔ ہم آپ سے واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، جن ساتھیوں کے میں نے نام لیے ہیں، ہم اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے قطعاً رہنے کے روادار نہیں ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس میں ہمارے قبرستان ہیں، اس میں ہمارے وہ ہیں۔ انگریزوں کے وقت سے لے کر اب تک ہم نے اس کی آزادی پہ کسی سے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ آئین آرٹیکل 6 میں غداری کی ڈیفینیشن کرتا ہے، ہائی ٹریزن ڈیفائن کرتا ہے۔
इसके पिछले हिस्से में हल्फ है हमारे फौजियों का हल्फ है कि मैं किसी सूरत भी सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं आपको कसम नहीं देता क्या ये हल्फ की वफादारी हो रही या नहीं हो रही। पाकिस्तान तब बचेगा, तब चलेगा जबकि इसके तमाम इदारे इस आइन के डेफिनेशन के उसमें रहेंगे, फ्रेम में रहेंगे। हम प्रेस की आज़ादी के हकदार हैं, प्रेस अपने वजूद में अपने उसमें रहे, जुडिशरी अपने फ्रेम में रहे, फौज अपने फ्रेम में रहे। मैं नहीं हूं मेंबर, हमारी पार्लियामेंट के मेंबर ये लोग हैं। हमारी पार्लियामेंट इस आइन के तहत ताकत का सरचश्मा होनी चाहिए। दुनिया की तमाम पॉलिसियां हमारे मुल्क की खारिजी और दाखिली they must originate from the parliament, और वे जुडिशरी से लेकर फौजी तक हर एक को माननी पड़ेगी। आज क्या हो रहा है, जिले कर्नेलों के हवाले हैं, सूबे कोर कमांडर्स के हवाले हैं, जुडिशरी के हर जज के पीछे एक मेजर बैठा रहता है। ये बर्बादी का रास्ता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, शाहबाज भाई, बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी, मैं वो नहीं कहता, अगर आप इस आइन का पास नहीं रखेंगे फिर हमसे ये गिला नहीं करना। और मैं खुदा न खास्ता धमकी नहीं देता, मेरी क्या हैसियत है, लेकिन हम खुद भी इंशाल्लाह, पूनम अभी तक जिंदा है, उसमें हमने गाड़ा नहीं है, पूनम जिंदा है। हम मजबूर हैं, अगर आपने हमारा साथ न दिया हम खुद फिर किसी तारीख की इब्तिदा करेंगे उसके साथ, बार के साथ। ना हम गड़बड़ चाहते हैं, ना हम किसी को गाली देना चाहते हैं। सारे आलिम फाजिल लोग बैठे हैं, 3 किस्म के वो हो सकती हैं। इस इज्तिमा को खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर ये फैसला करना होगा कि हमने इस मुल्क में पॉलिटिक्स में इस आइन की रूह से फौजी का कोई रोल, चाहे ISI का हो, MI का हो, किसी सूरत कबूल नहीं करना। 1, हमने जुडिशियल एक्टिविज्म का भी रास्ता रोकना होगा, और हमने जनाब बिलावल भुट्टो और शाहबाज की शक्ल में खुदा न खास्ता सिविल डिक्टेटरशिप का भी रास्ता रोकना होगा। वी मस्ट, हमें ऐलान कर देना चाहिए कि हम इस मुल्क में किसी किस्म की दूसरी बालादस्ती किसी को कबूल नहीं करेंगे। बात यह है, इस इज्तिमा ने यह फैसला करना होगा कि ये फॉर्मेलिटी नहीं है, इसका एक एक लफ्ज़ मुकद्दम और मुकद्दस है। जो जज, जो जर्नल, जो सियासी आदमी इस आइन को नहीं मानता, हमें उससे बगावत करनी पड़ेगी, हमें उसके खिलाफ सफ आरा होना पड़ेगा, और हमें उसके खिलाफ गलियों में निकलना होगा। ये हमारी छोटी पार्टियों की वो है, छोटी पार्टी समझें या वो समझें। इस सिलसिले में हमसे जो कुछ हो सकता था, रज़ा रब्बानी साहब बैठे हैं, बड़ी अर्करेजी के बाद हम मशकूर हैं। पंजाब के बड़े सूबे के जफ़र साहब भी बैठे हुए थे, कुछ और लोग भी थे। हमने एक एक लफ्ज़ इस कॉन्स्टिट्यूशन का छान मारा और 18th अमेंडमेंट की शक्ल में हमने फैसला दे दिया। अब लोग इस सोच में हैं कि खुदा न खास्ता पैसे की जोर से, बंदूक की जोर से फेडरेशन को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे या 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करेंगे। वो दिन पाकिस्तान में बहुत बड़ी बर्बादी का दिन होगा, बहुत बड़ी बर्बादी का दिन होगा। बलोच, पश्तून, सिंधी विल बी ऑन द स्ट्रीट्स, और फिर न कोई आइन मानेगा। फिर खुदा न खास्ता अगर अपने में मजबूर किया, खुदा न खास्ता अगर अपने मजबूर किया, हम फिर नए आइन का मुतालिबा करेंगे। ऐसा आइन जिसमें हमारी ज़ुबानों का, जिसमें हमारी रिसोर्सेज पे हमारा अपने बच्चों का पहला हक, जिसमें हमारी, अब ये बात है 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में आप ज़बानों की अहमियत से इनकार कर रहे हैं।
21st सेंचुरी में साइंस कहता है कि बच्चे का जहन मादरी जुबान में अच्छा परवरिश करता है। खुद कुरान करीम यानी अल्लाह पाक के चार किताबें अगर जुबान की अहमियत ना होती, हमारी चार मजहबी किताबें जो हम तक पहुंचती हैं, इंजील, ज़बूर, तौरात, फुरकान, चारों की जुबानें मुख्तलिफ हैं। अगर अल्लाह पाक भी पैगंबर भेजते वक्त ये ख्याल रख रहा है, मोहम्मद पैगंबर को अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं कि मैं आप बिल्लिसानी कौम ही, मैं आपकी कौम की जुबान में कुरान भेज रहा हूँ। कुरान करीम की आयत में बोल रहा हूँ, उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये मेरी रबूबियत का कमाल है कि आदम अलैहिस्सलाम और हवा बेटी के बच्चे एक जुबान नहीं बोलते। हम रिक्वेस्ट करते हैं, वाकई क्या आपसे हमसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपसे हम? बलोच, पश्तून, सिंधी और भी बहुत सारे लोग जो हमारे साथ होंगे, हम आपको कुरान पे हाथ रख के आपको हल्फ देंगे कि हम इस मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन किसी सूरत भी हम सब ऑर्डिनेट गुलाम की शक्ल में कतन नहीं रहेंगे। एक जस्ट क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन के लिए या सोच के लिए, लीग ऑफ नेशन जब बनी थी, यहाँ सारे तालीम याफ्ता लोग बैठे हैं, लीग ऑफ नेशन जब बनी थी, आज़ाद मुल्कों की तादाद 60 से कम थी, 60 से कम थी। लीग ऑफ नेशन बनी 45 में, 45 जमा 55 जमा 20, ये हो गया 75। 75 साल में वो 60 मुल्क 291 बन गए हैं। हमें ये सोचना होगा ये मुल्क आसमान से नहीं गिरे, इन्हीं 60 मुल्क ममालिक में बेइंसाफियों के नतीजे में लोग उठे और मुल्क टूटते गए। ये बर्बादी एक दफ़ा हम सह चुके हैं, ये बर्बादी बंगाल की शक्ल में हम एक दफ़ा सह चुके हैं। खुदा के लिए मोहसिन को मौका नहीं मिला, मैं भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मालिक बैठा हुआ है, बाकी लोग बैठे हुए हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या आपने नहीं किया फाटा में, क्या आपने नहीं किया बलूचिस्तान में, और अब क्या नहीं कर रहे। खुदा को मानो, लोगों की खामोशी को आसान मत लो। 13 मैं गिनना नहीं चाहता, 13 ऐसी तारीखें चली हैं फौजियों के खिलाफ आवाम की। 13 के 13 में फौजी आ रहे हैं, जिनमें नेपोलियन भी था, जिनमें अमेरिका ने कहा एक उसमें कि हमने वियतनाम में डेस्परेट होकर इतने बम बरसाए जो दूसरी जंग आज़ीम में कलेक्टिवली हम नहीं बरसा सके थे, लेकिन वी वर डिफीटेड। मत करें, अपने लोगों को खिलाफ ना उठाएं। बलूच क्या चाहता है आपसे, पश्तून क्या चाहता है, सिंधी क्या चाहता है कि भाई जो खुदा ने हमें साइल और वसाइल दिए हैं सारे हमें मत दो, सारे हमें मत दो, लेकिन हमारे बच्चों का पहला हक तस्लीम करो उन पे। बलूच भी ये कहता है, सिंधी भी ये कहता है, पंजाबी भी ये कहता है, सराइकी भी ये कहता है, आए पाकिस्तान को बनाएं, आए। एक सबसे अहम सवाल बार के अज़ाकाबरीन, इसका जवाब हमें देना होगा, हमारी जर्नलिस्टों ने देना होगा, हमारे दानिशवरों ने देना होगा कि फौज पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान फौज के लिए। इस वक्त का जवाब शहबाज ने देना होगा, मेरे आसिफ भाई ने देना होगा, दूसरे साथियों। आई रिपीट, ये मुल्क 20 करोड़ इंसानों के लिए और ये फौज 20 करोड़ इंसानों के लिए, या ये मुल्क फौज के लिए। अगर ये मुल्क फौज के लिए है, सियालकोट भाई मेरे दोस्त ख्वाजा मुबारक हो, फिर आप जाने आपकी फौज जाने, उसमें तो सिंधी गरीब मारा जाएगा। आई डोंट नो ए सिंधी जनरल, आई डोंट नो ए सिंधी ब्रिगेडियर, आई डोंट नो ए सिंधी कर्नल। हाँ जी, सिंध गरीब बड़ा सिंध है। खान साहब जरा थोड़ा सा एक मिनट बस, माफी के साथ। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।